Welcome students in your physics class, and my today's topic is conservative and non-conservative force. Today I will discuss what will be the burden by a conservative force and what will be the burden in case of the non-conservative force. On what factors the burden depends in case of conservative and non-conservative actually. So students, in case of the conservative force, when you are doing the work with respect to the conservative force, that work does not depends upon path. The first condition, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. तो हियर this work done in case of conservative force doesn't depends on the path but it depends only on the initial and final position. I have taken an example. A body moves from A to B. There are three different possible paths actually to go from A to B. Path number 1, 2 and 3. With respect to the conservative force, what you see the work done by this path actually will be what? Let's take this W1 is the work done through this path number 1, and W2 is the work through this path number 2, and W3 is the work done through this path number 3. What you see here students, you see that initial and final position is same. बॉडी A से B मूव करती है लेकिन उसके लिए 3 डिफरेंट पाथ हैं, 1, 2 एंड 3. पोजीशन सेम है, पाथ डिफरेंट है. कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क होता है एक्चुअली वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इट मींस व्हाट, पाथ कुछ भी हो, चाहे पाथ 1 हो या 2 हो या 3, जो भी पाथ आप सिलेक्ट करते हैं इन गोइंग फ्रॉम A to B, but your work remains same. It means what? W1 will be equals to W2 will be equals to W3. Okay? So this is the work done in case of the conservative force. I have taken the example, okay, to make it clear more actually. Here, these are the forces which are the conservative force. Gravitational force is a conservative force, spring force is a conservative force, and electrostatic force is also a conservative force. Student, I have taken an example here. A body moves from, let's take this is A and this is B and this is C here. Clear? So first we find the work done by the body in going from A to C. This is the path number 1 actually. यानी बॉडी को A से C जाना है और there are 2 different paths actually. This is the path 1 and this is the path 2. Either the body choose this path or body choose this path, okay? But body wants to go to C, from A to C. Clear? So firstly you find the work done by the body actually in going from A to C with respect to gravitational force. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आप वर्क डन किस फोर्स के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ हम जो वर्क निकालने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं. तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, फ्रॉम A to C. तो यहाँ मैंने फाइंड किया है W1 इज इक्वल टू क्या होगा, पाथ वर्क इज क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड कॉस ऑफ थीटा, यानी Fs cos थीटा. दिस इज फॉर्मूला ऑफ द वर्क. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क. इस फॉर्मूले का हम यूज करके वर्क फाइंड करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी. The force is a gravitational force actually, and what will be this what is this gravitational force? This gravitational force will be mg. Okay, तो gravitational force इस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा which is mg. क्लियर? तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी. तो यहाँ पर इस लोकेशन पर इस बॉडी पर ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो फोर्स की वैल्यू हो गई mg. और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि A से C जाना है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है L, so it becomes mgl. And cos, what is theta actually? The theta is in between force and displacement. Clear? तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है?
जो कि इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रहा है। और आप ये देखेंगे जो इस सरफेस है इसका इंक्लाइन प्लेन से एंगल कितना है, थीटा है, और इस सरफेस का फोर्स के साथ एंगल 90 है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, इसके साथ जो टोटल एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, द एंगल विल बी द सम ऑफ दिस 90 एंड थीटा। Okay, so theta will be equals to what? 90 plus theta. Clear? After solving this, you get cos 90 plus theta is minus sin theta. आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, तो आपको फाइनली मिलेगा रिजल्ट जो मिलेगा माइनस mgl sin theta। या इसका दूसरा तरीका ये है, उससे भी आपको सेम वैल्यू मिलती है। mg को जब हम स्प्लिट्स करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट हमें mg sin theta मिलता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो mg cos theta होगा। ठीक है, जो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, mg cos थीटा इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट mg, ये एंगल थीटा होगा, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज mg cos थीटा। इसको मैंने लिया नहीं है, ठीक है। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट mg sin थीटा। तो व्हेन यू take this body from A to C, so there is a friction force which will work along this direction, clear, because of the gravity। okay, तो ये जो mg का जो एक component होगा वो इस डायरेक्शन होगा, इंक्लाइंड प्लेन के along होगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो जब आप इस कंपोनेंट को यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज अ फोर्स एक्चुअली, सो इट बिकम्स व्हाट, द फोर्स इज व्हाट mg sin थीटा। You can take this mg and sin theta, ये हो गया, and what is the displacement? Displacement is L, but this force because it is in opposite direction, so it will be with a negative sign, minus mg L sin theta। Clear? समझ में आ गया नहीं? तो आप इसको यहाँ से फाइंड करें या फिर इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि mg को हमने स्प्लिट किया है mg sin theta में। ये बात मत भूलिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आप जो वर्क डन निकालने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के, दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgl sin थीटा। ओके, क्लियर? नाउ इसी तरह से स्टूडेंट्स हम वर्क डन निकालेंगे थ्रू दिस पार्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द सेम फोर्स, एंड बिकॉज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डिपेंड्स ओनली on the initial final position, doesn't depends on the path. So what you see, you will see the burden through this path and through this path will remain same actually। तो सेकंड पाथ के थ्रू आप कैसे निकालेंगे, आप बॉडी A से B जाती है, फिर B से C जाती है, ठीक है, उसको जाना कहाँ है, A से C जाना है, लेकिन इस बार जो पाथ चूज करती है बॉडी वो सेकंड पाथ चूज करती है, उसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो here the burden for the second path actually will be what, A to B, the body goes from A to B and B to C। So there will be two work actually. First, the body goes from A to B. So through the A to B, the burden will be A, B, okay, and through B to C, burden will be B, C. But what you see actually, from A to B, theta is 90. When the body goes from A to B, theta remains 90. Why theta remains 90? Because displacement along this direction and the gravitational force will be downward direction, okay? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 है। मैंने यहाँ शो किया है, ये फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अब इस डायरेक्शन में होगा, तब उस केस में क्या होगा, थीटा 90 होगा। तो फॉर A to B थीटा इज 90 एंड cos 90 इज 0, सो WAB विल बी 0। तो ये वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी WBC? WBC हम निकालेंगे, अब BC हमें निकालना है, ठीक है। तो BC के लिए हमने पहले because this is a right angle triangle, this angle is theta, so we can find simply this BC is L sin theta, ठीक है। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। तो इसको हमने BC को फाइंड कर लिया, L sin theta। क्लियर? ओके, नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है, B to C डिस्प्लेसमेंट कितना है, L sin theta है, और फोर्स कितना लग रहा है इस पर, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम mg और L sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 180 का एंगल हो गया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है या एक ये भी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स के, तो वहाँ माइनस साइन आता है,
क्या कौन साइन आता है, माइनस साइन हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि cos 90 या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मिनट। Okay students, so I am talking about why this negative sign comes actually whenever the force is in opposite direction to the displacement actually, then you will get with a negative sign, burden with a negative sign। ये आप इसको दूसरे तरह से समझ सकते हैं, फोर्स फॉर्मूले के थ्रू हम जब निकालते हैं तो W इज इक्वल टू होता है F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज mg एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, L sin थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनटू cos थीटा, एंड cos थीटा इज व्हाट 180, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फोर्स कितना लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है L sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो mg L sin थीटा हो गया, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंड cos थीटा, एंड थीटा कितना होगा, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इसके बीच में एंगल है 180 और cos 180 की वैल्यू होगी -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है WBC = -mg L sin थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने वर्डन डिफाइन किया थ्रू पाथ नंबर 1 एंड थ्रू पाथ नंबर 2, एंड इन बोथ केसेस व्हाट वी गेट द सेम वैल्यू एक्चुअली, ओके। फॉर पाथ 1 we get -mgl sin theta, and for path 2 we get the same value -mgl sin theta. It means what, the burden remains same through path 1 and 2, clear, because initial and final position is same। तो ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, इस एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में या थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्स burden remains same, burden doesn't depends on the path, it only depends on the initial and final position, clear, and this gravitational force is a conservative force, it is here one thing is very important, keep this thing in your mind, मैंने नोट करके यहाँ लिखा है, burden by conservative force in a closed path is always 0। closed path के केस में burden 0 होगा, okay, for a conservative force। Let's suppose students, I have taken 2 examples here, which starts from A, go to B, and then B to C, C to D, and D to E, and finally we comes back to the same position, ओके। तो वापस हम A पर आते हैं, तब इस केस में हम देखते हैं वर्डन कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, वर्डन डिपेंड्स करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको सेकंड पॉइंट में, वर्डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है, तो इस केस में वर्डन इसका 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिएगा एक बॉडी को हम A से B लेके जाते हैं, वापस B से A लेकर आते हैं, ठीक है, तो A से B वर्डन कितना होगा, फ्रॉम A टू B देन B to A, ठीक है, तो टोटल वर्क हमने निकाला, तो फ्रॉम A to B burden will be -mgh, because the burden work is done by the gravitational force on this body, and what is the gravitational force, force will be exert downward, okay, and similarly इस बॉडी पर भी जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो जब बॉडी को A से भी लेके जा रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इसमें अपवर्ड होगा, तो इसलिए साइन कैसा होगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो देन वी टेक द नेगेटिव साइन mgh, ठीक है, दिस इज द बर्डन। सिमिलरली स्टूडेंट, व्हेन वी टेक फ्रॉम B to A, देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है, तब इस केस में ये पॉजिटिव वैल्यू होगी mgh, तो एक वैल्यू नेगेटिव मिलती है आपको, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, इस तरह से कैंसिल आउट होकर 0 मिलता है। तो क्लोज पाथ के केस में जो वर्डन होगा वो 0 हो जाएगा फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो बिकॉज हियर ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्डन यू गेट 0, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रिमेन सेम एक्चुअली, देन वर्डन विल बी 0। Now students, I will discuss about the non-conservative force. What is the non-conservative force? When the force is not conservative actually, उसको हम कहते हैं non-conservative force। जब force, इसका एक simple definition आप इसको simply इस तरह से explain कर सकते हैं, when the force is not conservative, then that is known as non-conservative force, and when the force is conservative, then that is called the conservative force। In this case, burden depends upon path। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो किसी बॉडी पर डिफरेंट पाथ के लिए जो है जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, मैं आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हियर द वन थिंग इज दैट द बर्डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे कि आपने इसमें लिया था बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0, लेकिन इस केस में क्लोज पाथ के लिए बर्डन 0 नहीं होगा, क्लियर, ओके।
Okay, students, here I have taken an example to make you clear this non-conservative force actually. I have taken a table and this is an object of mass m. There are two different paths, path number 1 and path number 2 here. तो here students we are going to find out the work done by a friction force. तो ये जो मैंने आपको बताया कि फोर्स वर्क जो निकालने जा रहे हैं वो किस फोर्स के थ्रू निकालने जा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली. तो विच टाइप ऑफ फोर्स यू हैव टेकन हियर. तो हियर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. तो स्टूडेंट जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे मूव करते हैं और इसको ऐसे ओके इस पाथ के थ्रू यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है, पाथ नंबर 2 के थ्रू, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा. इसी तरह से जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं पाथ नंबर 1 के थ्रू, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और डिस्प्लेसमेंट इसमें इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जब आप पाथ फर्स्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, इस पर फर्स्ट पाथ के थ्रू जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन टू पाथ सेकंड. ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा बनेगा. ठीक है, तो पाथ नंबर सेकंड के थ्रू अगर आप इस ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बनेगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा. और जब पाथ नंबर 1 के थ्रू यानी कि बर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स विल बी मोर देन द बर्डन ओके बाय द फ्रिक्शन फोर्स थ्रू दिस पाथ नंबर 1. ओके, तो सेकंड पाथ में जो बर्डन होगा बाय द फ्रिक्शन फोर्स वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पाथ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना ज्यादा ये लेंथ है, इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है. जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा इस पर फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, और जितनी लेंथ कम होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स कम होगा. तो हियर दिस बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट सेम एक्चुअली फॉर पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2 हियर. एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बर्डन डिपेंड्स अपॉन पाथ. फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए बर्डन है वो एक्चुअली पाथ पर डिपेंड करता है. तो पाथ नंबर बर्डन बाय द पाथ नंबर 1 विल नॉट बी इक्वल टू पाथ नंबर 2. क्लियर. क्लोज पाथ की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स. इन ए क्लोज पाथ बर्डन विल नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर ए क्लोज पाथ. ओके, जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है. एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप A से B लेके आते हैं, वापस B से A लेकर आते हैं. ठीक है, तो एक क्लोज पाथ हो गया. A से B लेकर आ रहे हैं, वापस B से A आप सेम पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं. अब इस केस में हम देखते हैं बर्डन क्या होगा. फर्स्ट केस में हमने देखा जब A से B लेके आते हैं बर्डन माइनस Fs होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो बर्डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा. इस तरह से जब हम B से वापस A लेकर आते हैं तभी भी जो है बर्डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बर्डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव एक्चुअली. फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इधर इसमें इधर हो रहा है डायरेक्शन. ठीक है, तब इस केस में आप देखते हैं दोनों ही केस में बर्डन आपको नेगेटिव मिलता है, चाहे आप इस केस की बात करें आप इस केस की बात करें. तो फाइनली टोटल वर्क होगा, बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, डजंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन. डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है. समझ में आ रहा है नहीं. तो इस केस में क्या होगा, चाहे आप वर्क इस डायरेक्शन ले रहे हैं या इस डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपली जब आप स्केलर क्वांटिटी स्केलर जो प्रॉपर्टीज होती हैं फॉर ए स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली यू कैन ऐड द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क यहाँ माइनस Fs है, दूसरा वर्क आपको माइनस Fs मिलता है. ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, माइनस 2Fs हो जाएगा. टोटल वर्क हो जाएगा माइनस 2Fs विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्लियर हो गया होगा कि बर्डन क्लोज पाथ के लिए 0 नहीं होगा. इससे पहले केस में हमने देखा था जब कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात कर रहे थे, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, आप किसी हाइट पे लेके आते हैं, वापस उसी हाइट से वापस सेम पोजीशन पे लेकर आते हैं, तब उस केस में आप देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस mgh वर्क होता है, जब आप उसको डाउनवर्ड लेकर आते हैं सेम पोजीशन पे तो प्लस mg होता है, mgh होता है. तो टोटल वर्क आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है. लेकिन यहाँ पर इस केस में आप देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में आपको बर्डन नेगेटिव मिलता है फॉर द फ्रिक्शन फोर्स. सो यू गेट द minus 2Fs which is not equals to 0. तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टेकन द दिस कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के पॉइंट्स यहाँ मैंने लिए हैं. कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन द पाथ. ओके, बर्डन विल बी सेम फॉर पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2. इट ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल फाइनल पोजीशन. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर क्लोज पाथ बर्डन विल बी इक्वल्स टू 0. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बर्डन depends upon path. Okay, so this burden for the first part will be not same is not same as the burden for the second part. So this burdens are not equal to each other. Clear. And second point is for closed path burden will never be equal to 0. तो ये points आपको याद रखने हैं. ठीक है, important points हैं. Thank you so much.